Good morning, students. So now I start our today's class in subject of geography, and as you know, we learn the chapter interior of the earth, and we learn about earthquake. In previous classes, we learn how to occur the earthquake. Now we are moved to our next topic, which is the types of earthquake. There are total 5 types of earthquake, and that is the first earthquake type, which is a very common type, that is a tectonic earthquake. When the tectonic plates move each other and shakes, then that is created an energy, and when the energy come to surface, that's called earthquake. And second, that is a specific class of tectonic earthquakes, sometimes recognized as volcanic earthquakes, when it means when the volcanic eruptions that is caused to that is create a pressure on tectonic movement, tectonic plates, and they are moved and create an energy, so that is converted in earthquake. And the third type, that is in the area of intense mining activities, where mining activities occur, they are using the blasting elements, and that is a create huge pressure on the earth and energy also, and after that is convert an energy, and that energy is create earthquake. After that, the ground shaking, that fourth type, that is the ground shaking, may also occur due to the explosion of chemical nuclear devices. It means when the nuclear devices or big bombs or chemical blasted create on the earth, that is also create an semi-earthquake. And the example of that ammonium nitrate blast in Lebanon, you must to see that after previous in previous times in Lebanon. So our fifth and last types of earthquake, that is the earthquake that occur in an area of large reversal and referred as a reversal induced earthquake, that is creating a dams areas where constructed a dam, and that is when making a pressure on energy, that could convert in earthquake. So that is our 5 type of earthquake. After that, measuring of earthquake, it is measured by Richter scale. When earth shake, the Richter scales are catching that energy, so we can say that the earthquake measure to the Richter scale, that is measured in 0 to 10 points, and after to 4 or 5 points, the earthquake is a very dangerous. So now we look about the effects of earthquake. There are 12 effects of earthquake. It is ground shaking, that is the first primary effect. After that, differential ground settlements, that is the change of ground settlements. As you know, in 2014, an earthquake came in Nepal, and it is a very big earthquake, Richter scale, I think 7 to 8 points, and that is a disturb a ground settlements in Nepal or India border area. And third, land and mud slides. After earthquake, lots of land positions and muds or slides. Soil liquefaction, liquefactions, and first the ground lurching, and 6, avalanche. Ground liquefactions means it's mean that the ground is converted into very various types of significance came of the earth. It means first, soil liquefaction is mean soil convert liquid forms, and our fifth, ground lurching, means ground pose in a particular area. It means एक तरफ झुक जाना, जो ग्राउंड का पोर्शन है वो एक तरफ झुक जाता है, ग्राउंड लर्चिंग. इट मीन्स एवलांच, हिमस्खलन, यानी कि जब बर्फ़ जो होते हैं ग्लेशियर्स एरियाज़ में, जो पहाड़ों पे लदे रहते हैं, जो ग्राउंड अर्थक्वेक की वजह से वो नीचे की ओर गिरते हैं, एवलांच कहते हैं. ग्राउंड डिस्प्लेसमेंट, जो सतह होता है पृथ्वी का, वो एक जगह से दूसरी जगह पे मिक्स हो जाना, थोड़ा एक जगह से दूसरी जगह तक मूव्ड हो जाना. फ्लड्स फॉर्म डैम एंड लीफ फेल्योर, फ्लड्स केम, फायर, स्ट्रक्चर कोलैप्स, falling objects, and tsunami also. Tsunami is a very big and also a dangerous causes of earthquake.
इसमें जो पूरे 12th हम लोगों ने देखा ये अर्थक्वेक के जो प्रभाव हैं, उसमें जो ऊपर के 6 प्रभाव हैं वो तो लैंड मासेस को इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि जो लैंड एरियाज हैं उनको प्रभावित करते हैं। बाकी के जो हैं इफ़ेक्ट्स हैं वो डिस्ट्रक्ट करते हैं पीपल्स को और एसेट्स को, बिल्डिंग्स को, मटेरियल्स को। और सुनामी जो है, सुनामी सिर्फ़ और सिर्फ तभी क्रिएट हो सकता है जब अर्थक्वेक का जो सेंटर है, फोकस है, हाइपो सेंटर है, वो ओशियंस में बने। यानी कि ओशियंस के नीचे जब प्लेट्स टेक्टोनिक्स मूव्ड हो, या फिर वोल्केनिक इरप्शंस हो, या फिर कोई ऐसा माइनिंग का वर्क चल रहा हो जिसकी वजह से अर्थक्वेक क्रिएट होता है, तो वो उसके जो ओशियन का फ्लोर होता है वो उसको शेक करता है, एनर्जी वहाँ रिलीज होती है। और जब वो शेक होती है वहाँ पे ओशियन का फ्लोर जब शेक होता है तो वो वाइब्रेंट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर का जो पानी होता है वो बिल्कुल लहर की तरह उठता है। और जब ये लहर जैसे जैसे आगे बढ़ती है वैसे वैसे वो मजबूत होती जाती है, बहुत सारी एनर्जी उसको मिलती जाती है। और जब वो कोस्टल एरियाज़ में आते हैं या तट से टकराते हैं, कोस्ट से टकराते हैं, तो वो बहुत बड़े हो जाते हैं, कम से कम 100 से 200 मीटर, 50 मीटर, ऐसे इतने लंबे चौड़े लहर बन जाते हैं। और जब एक तरीके से कोस्ट पे पहुंचते हैं तो काफ़ी, कोस्टल एरिया से पहुंचते हैं तो काफ़ी नुकसान करते हैं। आफ्टर दैट फ्रिक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक ऑकरेंस, तो जो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है मोस्टली हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले तो ये बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है, काफ़ी नुकसानदायक होती है, डेंजरस होती है। लेकिन 8 के बाद के जो रिक्टर स्केल्स के अर्थक्वेक क्रिएट होते हैं वो बहुत कम क्रिएट होते हैं, और साल भर में 1 या 2 बार ही ऐसा देखा जाता है। और छोटे अर्थक्वेक यानी कि रिक्टर स्केल पे अगर हम उसको नापें तो 3 से 4 तक के रिक्टर स्केल अक्सर आते रहते हैं, क्योंकि मूवमेंट्स हमेशा ज़मीन के नीचे चलती रहती हैं। तो वो बहुत ज़्यादा 2 से 3 तक के बीच का जो रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक होता है वो बिल्कुल ही नुकसानदेह नहीं होता है। लेकिन जब हम 6 के ऊपर जाते हैं, 5 के ऊपर जाते हैं तो वो डिस्ट्रक्टिव होता है। और 8 तक का रिक्टर स्केल जब पहुँचता है, 8-9 तक, तो वो पूरी तरीके से सरफेस को फ्लैट कर देता है, यानी कि उसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। ये फ्रिक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक इक्वलेंस कहलाता है। इसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ देखेंगे, जिसमें सबसे पहला अर्थ के 3 स्ट्रक्चर है, आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे, जिसमें द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर। 3 स्ट्रक्चर। सबसे पहले क्रस्ट की बात करें तो ये सबसे अपर पार्ट होता है अर्थ का, और डिफ्रेंशिएशंस होते हैं। जो ओशियंस के क्रस्टल पार्ट होते हैं वो लैंड मास यानी कि जो ज़मीन का एरिया होता है उसकी अपेक्षा में काफ़ी कम थिन होते हैं, पतले होते हैं। तो जो ओशियंस के जो क्रस्ट का मोटाई हम कह सकते जो है वो 5 किमी तक का उसका लेंथ माना जाएगा, डीपनेस माना जाएगा। और जबकि उसके एवज में आप जब लैंड मास का देखेंगे तो करीब 30 किलोमीटर तक का जो डीपनेस है वो क्रस्ट में काउंट होता है। तो और ये बहुत ब्रिटल होते हैं, यानी कि बड़ा ही जल्दी ये टूट जाते हैं, कमज़ोर होते हैं क्रस्टल एरियाज। और यहाँ पे अगर देखें तो जो एक तरीके से माउंटेनियस रीजन्स हैं, वहाँ का जो क्रस्ट है वो उससे भी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि डीप पाया जाता है, मोटा पाया जाता है, मजबूत पाया जाता है। तो यहाँ पे करीब ये 70 किमी तक का, यानी कि माउंटेनियस एरिया में अगर हम क्रस्ट को मेज़र करें तो क्रस्ट पार्ट पूरा माउंटेन से लेकर के डीप 70 किलोमीटर तक के रीजन को डीपनेस में हम उसको क्रस्टल पार्ट कहेंगे। और अलग अलग रॉक्स से ये बना होता है। जो क्रस्ट एरिया का जो डीपनेस वाला पार्ट होता है ये अलग अलग रॉक से फॉर्मेट होता है। इसमें आप फिगर भी आपका दिया है, आप उसको वॉच कर सकते हैं कि किस कोर से लेकर के पूरा, ये फिगर 3.3 आप देखिए, कोर से लेकर के पूरा क्रस्ट तक का पार्ट दिखाया हुआ है वहाँ पे। तो इस तरीके से मेंटल रीज़न की बात करें तो जो क्रस्ट के बाद के जो नीचे का पार्ट है वो मेंटल पार्ट कहलाता है। और ये एक तरीके से जहाँ पे क्रस्ट एंड होता है वहाँ से 2900 किमी तक के डीपनेस तक के रीजन को हम मेंटल कहते हैं। और जो मेंटल का अपर पार्ट होता है उसे हम एस्थेनोस्फीयर कहते हैं। और एस्थेनो का अर्थ मतलब दुर्बलता मंडल हिंदी में से कहते हैं। और ये 400 किमी तक का रीजन कवर करता है, इसे अभी तक मेज़र किया गया है। और जो वोल्केनोज होते हैं उसमें से जो मैग्मा रिलीज़ होती है वो मैग्मा
इन्हीं रीजन से रिलीज होती है। तो और क्रस्ट और मेंटल के इसके अपर पार्ट को मिला करके लिथोस्फीयर जो एरिया बनता है, स्थल मंडल से हिंदी में कहते हैं और इंग्लिश में लिथोस्फीयर कहते हैं। और इसकी मोटाई यानी कि इसका जो फिगर होता है वो 10 to 200 किमी तक के बीच में पाई जाती है। और इसके नीचे का जो मेंटल का जो विस्तार होता है वो एस्थेनोस्फीयर के समाप्त, मतलब जहाँ से एस्थेनोस्फीयर एंड होता है वहाँ तक ये फैला होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो कोर है यानी कि धरती का सबसे लास्ट पार्ट जो कि एकदम सेंटर में क्रिएट है। ये 2900 किमी के बाद का जो रीजन होता है वहाँ से स्टार्ट होता है। और आउटर कोड और इनर कोड दो पार्ट में से बटा गया है। जो आउटर कोड है वो लिक्विड फॉर्म में है और जो इनर कोड है वो सॉलिड फॉर्म में है। और ये सारी चीज़ें जहाँ यहीं से मैग्नेटिक फील्ड्स वगैरह क्रिएट होती हैं। और जो यहाँ लिक्विड फॉर्म्स हैं यानी कि जो लिक्विड पार्ट यहाँ पे क्रिएट है वहाँ पे मोस्टली उस लिक्विड फॉर्म में निकिल और फेरम यानी लोहा, इन ये दो मेन पार्ट्स या मेन एलिमेंट्स पाए जाते हैं यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में। इसलिए इन्हें नीफे लेयर से भी नीफे लेयर के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी जानिए कि अर्थ की ग्रेविटी और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न यही है, क्योंकि जब अर्थ अपने एक्सिस पे मूव करता है तो वो मूवमेंट इन पूरे निकिल और फेरम यानी कि लोहे को भी मूव करवाता है, जिसकी वजह से इन मूवमेंट की वजह से एनर्जी क्रिएट होती है जो मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होती है। फिर ये मैग्नेटिक फील्ड ग्रेविटेशनल फोर्स को क्रिएट करते हैं। ये आगे की चीज़ें हैं, अभी केवल एक नॉलेज के लिए आपको बता दे रहे हैं।